Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 3. So, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies. That is 9 November 2020. With this, you will mention online classwork in your copies, and with this, you will mention the heading in your copies, that is extra work. So as you all know that before yesterday we have completed our lesson 24, that is punctuation, and with this we have completed the lessons of internal assignment B1. Now only extra work is left. Now in the further days we will cover the extra work of English grammar, which will come in internal assignment B1 syllabus. So the first exercise is make new words by using the following suffixes. क्या करना है, इन suffixes के द्वारा आपको new words बनाने हैं. At the end of the word when you will join, so it will form a new word. First is word. So the word we had made, that is backward, पीछे की ओर का, and afterward means बाद में. Second is wise, clockwise, clock की तरह जैसे clock घूमती है, and then otherwise या तो. Then आता है IVE. So the word we have made, that is expressive and creative. Creative means होता है रचनात्मक. Then EN, it's wooden means लकड़ी का. Sweeten means मीठा. Second is URE. So that is departure. Departure means होता है प्रस्थान, जाना. Pressure means दबाव. AGE, package, parcel, breakage, टूट फूट. Hood से बनाया है childhood. Parenthood. Parenthood means होता है अभिभावकता. ARY, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अतिरिक्त पूरा करने वाला. प्लानिटरी, दैट इज भूमंडलीय. नेक्स्ट इज FY, आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई. ATE, दैट इज कैप्टिवेट एंड कंसोलिडेट. कंसोलिडेट मीन्स होता है संगठित करना, एंड कैप्टिवेट मीन्स मोहित करना. सो दीज वर द सफिक्सेस. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज synonyms. So write synonyms of the following words. First is beautiful. So what is the synonym of beautiful? That is dazzling and stunning. They both mean खूबसूरत only. Second is bright, sparkling and shimmering means चमकीला. Third is delicious, savory and delectable means स्वादिष्ट. The another words which you can use for delicious. Fourth one is destroy means बर्बाद होना, that is demolish and ruin. Fifth is new, that is modern and करंट, जो अभी में हो, प्रचलन में हो. सिक्स इज क्वाइट. क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना. म्यूट एंड इनऑडिबल. सेवेंथ इज नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स असाधारण, दैट इज ऑर्डिनरी एंड यूजुअल. एट्थ इज डिस्क्राइब. डिस्क्राइब मीन्स रिकाउंट एंड describe means वर्णन करना, and the synonym of describe is recount and decipher. On ninth number the word is story, and the synonym is narrative and fable. 10th नंबर पर है think. So the synonym is consider and contemplate. So these were suffixes and synonyms. Now we have to cover the passages which is given in the book only. So as you can see that in your book, at the last of your book, some passages are being given. So we will cover the one passage in today's work. Let's see. So the passage is given on page number 165 in your book, and the number of the lesson is 28, and the topic which is given for the passage, that is the 3 photographs. So now we will read the passage and we will understand, then we will solve the exercises related to the passage only. There was a fireplace in front of us. हमारे सामने fireplace means आग जलाने की जगह थी. Over it on a shelf, इसी fireplace के ऊपर एक shelf पर were 3 framed photographs. 3 framed photographs थी, means frame की हुई थी. Feluda moved closer to the fireplace to look at these. Feluda, it is a name of a person. वो उस fireplace के पास गया उन photographs को देखने के लिए. My wife, said राजन बाबू. राजन बाबू ने कहा ये मेरी पत्नी है. Pointing at the first photograph. She died barely 5 years after our marriage. So उन्होंने एक फोटोग्राफ था, द फर्स्ट फोटोग्राफ, उसको पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये मेरी वाइफ है और ये हमारी शादी के 5 साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी. The second photo was of a young boy who must have been about my own age. So here the writer is saying कि जो second photo था वो एक young boy का था जो मेरी ही age का होगा. When photo was taken, जब उसका फोटो लिया गया था उस समय. A handsome boy indeed. Who is this? Feluda asked. Feluda ने अब पूछा एक handsome boy है, ये कौन है? राजन बाबू began laughing. राजन बाबू ने हंसना स्टार्ट कर दिया. That photo is
देयर सिंपली टू शो हाउ टाइम कैन चेंज एवरीथिंग। सो ये फोटो जो है वो इसलिए लगाया गया है, दिखाने के लिए कि किस तरीके से समय जो है वो हर चीज़ को बदल देता है। वुड यू बिलीव दैट दिस इज माई ओन फोटोग्राफ? क्या तुम विश्वास करोगे कि ये फोटोग्राफ मेरा है? टेकन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तब लिया गया था जब मैं एक छोटा बच्चा था। आई यूज टू गो टू अ मिशनरी स्कूल इन बैंक्यूरा इन दोज डेज। मैं उन दिनों में बैंक्यूरा में एक मिशनरी स्कूल था, वहाँ जाया करता था। माई फादर वॉज द मैजिस्ट्रेट देयर, मेरे फादर वहाँ पर मैजिस्ट्रेट थे। बट डोंट लेट दोज एंजेलिक लुक्स डिसीव यू। एंजेलिक मीन्स दैविक, मीन्स फरिश्ते जैसा। लेकिन इस फरिश्ते जैसे लुक को, जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ, उससे अपने आप को धोखा मत देने दो। आई माइट हैव बीन अ गुड लुकिंग चाइल्ड, मैं एक बहुत अच्छा दिखने वाला बच्चा था, बट आई वॉज एक्सट्रीमली नॉटी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। माई टीचर्स वर ऑल फैड अप विद मी, मेरे सारे टीचर्स जो थे वो मुझसे परेशान रहते थे। इन फैक्ट आई डिडंट स्पेयर द स्टूडेंट्स आइदर, यहाँ तक कि मैं बच्चों को भी परेशान करने से नहीं छोड़ता था। आई रिमेंबर हैविंग ट्रिप्ड द बेस्ट रनर इन आर स्कूल इन 100 यार्ड रेस टू स्टॉप हिम फ्रॉम विनिंग। मुझे याद है अभी भी कि एक बहुत अच्छा बेस्ट रनर था हमारे स्कूल का, और एक 100 यार्ड्स की रेस थी, वहाँ मैंने उसे ट्रिप किया था, फंसा दिया था ताकि वो जीत ना सके। द थर्ड फोटो ऑफ अ यंग मैन इन हिज लेट ट्वेंटीज, मीन्स लेट ट्वेंटीज़ की थी। एक थर्ड फोटो एक यंग मैन की थी। इट टर्न्ड आउट टू बी राजन बाबूज चाइल्ड ओनली, प्रबीर मजूमदार। सो ये फोटो जो थी वो केवल राजन बाबू के बेटे की ही हो सकती थी, दैट इज प्रबीर मजूमदार। वेयर इज ही नाउ, फेल्यूडा आस्क्ड, फेल्यूडा ने पूछा कि अब आपके बेटे कहाँ हैं? राजन बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट, राजन बाबू ने अपना गला साफ किया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही सैड आफ्टर अ पॉज, उन्होंने एक विराम लिया, कुछ देर शांत रहे, उसके बाद उन्होंने कहा ही लेफ्ट होम 16 years एगो, उसने 16 साल पहले घर छोड़ दिया था। देयर इज वर्चुअली नो कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और हम वास्तव में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में अब नहीं हैं, मीन्स 16 years से नहीं हैं। फेल्यूडा स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द फ्रंट डोर, फेल्यूडा ने फ्रंट डोर की तरफ जाना स्टार्ट किया। अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ही मटर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना। उसने बुदबुदाते हुए कहा, एक बहुत So the first exercise is mark these statements as true or false. देन करेक्ट द सॉरी, सो हमें क्या करना है, देन करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट हमें नहीं करना है, वी हैव टू मार्क दिस स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स।
राजन बाबूज वाइफ डाइड 5 years ago, दैट इज फॉल्स बिकॉज उनकी शादी के 5 साल बाद मरी थी, इट्स नॉट बिफोर 5 years. सेकेंड इज द सेकेंड फोटो वॉज ऑफ राजन बाबू, जो दूसरा फोटो था वो राजन बाबू का था, दैट इज ट्रू. थर्ड नंबर पर है राजन बाबू सन लेफ्ट होम 16 years ago, राजन बाबू का जो बेटा था उसने घर जो था वो 16 साल पहले छोड़ दिया था, दैट इज ट्रू. ऑन फोर्थ नंबर द सेंटेंसेज राजन बाबू स्टडीड इन अ मिशनरी स्कूल, राजन बाबू जो थे वो मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, दैट इज ऑल्सो ट्रू. द लास्ट वन इज फेल्यूडा आस्क्ड टिंकोरी बाबू टू हेल्प हिम, फेल्यूडा ने पूछा था टिंकोरी बाबू से कि उन्हें हेल्प चाहिए है. नो, बिकॉज टिंकोरी बाबू सेड कि मे आई हेल्प यू, मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ. एक्सरसाइज सी इज question answers which we will do in the copies. Now let's see exercise D. Find the words or phrases from the passage that mean the same. So here meanings are given, we have to write the words or phrases which is same, which has same meaning to these words. First is innocent. Innocent is angelic, means बिल्कुल फरिश्ते जैसा. सेकेंड इज फूल, मीन्स बुद्धू बनाना, डिसीव धोखा देना. लोकेटेड अमोंग, नेस्टल्ड बसा हुआ. मेड समवन फॉल, किसी को गिराना, ट्रिप्ड करना. स्टेड अ लिटिल लॉन्गर, लिंजर्ड एक लंबे समय तक के लिए ठहरना, मीन्स लिंजर्ड. एडमिट समथिंग दैट वन फील्स अशेम्ड और एम्बेरस्ड अबाउट, कोई ऐसी चीज एडमिट करना, स्वीकार करना जिसके बारे में कोई व्यक्ति एम्बेरस्ड हो जाए, सो दैट इज कन्फेस. Next is rewrite these sentences in indirect speech. So the first one is my wife said Rajan Babu pointing at the first photograph she died beforely 5 years after our marriage. So हमें क्या करना है, indirect में लिखना है. So the answer will be Rajan Babu pointed at the photograph. राजन बाबू ने pointed किया photograph को, saying that it was his wife's, ये कहते हुए कि ये उनकी वाइफ का है. He added that she died barely 5 years after their marriage. कि उनकी मृत्यु जो थी उनकी शादी के 5 years बाद हो गई थी. सेकेंड इज वेयर इज ही नाउ, फेल्यूडा आस्क्ड, फेल्यूडा ने पूछा कि वो अभी कहाँ है. सो द आंसर इज फेल्यूडा वॉज आस्क्ड वेयर ही वॉज देन, फेल्यूडा ने पूछा कि वो कहाँ पर था. थर्ड इज डोंट वरी सेड फेल्यूडा फर्मली, आई विल डेफिनेटली गेट टू द बॉटम ऑफ दिस केस, फेल्यूडा ने कहा डोंट वरी, मैं इस केस की बॉटम तक जाऊंगा. सो फेल्यूडा फर्मली सेड नॉट टू वरी, एडिंग दैट ही वुड डेफिनेटली गो टू द बॉटम ऑफ द केस. फोर्थ वन इज थैंक यू गुड बाय सेड राजन बाबू, राजन बाबू ने कहा थैंक यू एंड गुड बाय. सो इनडायरेक्ट स्पीच इज राजन बाबू बिड गुड बाय थैंकिंग अस. फिफ्थ वन इज आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ही सैड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत इम्प्रेस हूँ. सो द आंसर इज ही सैड दैट ही वॉज ट्रूली इंस्पायर्ड बाय हिज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक्सरसाइज एफ है आपकी, चेंज दीज सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस. सो द फर्स्ट वन इज द थर्ड फोटो वॉज ऑफ अ यंग मैन इन हिज लेट 20s, जो थर्ड फोटो था वो एक यंग मैन का था, लेट 20s का. इट टर्न्ड आउट टू बी राजन बाबूज ओनली चाइल्ड प्रबीर मजूमदार, ये किसका हो सकता था, जो राजन बाबू के केवल एक ही बेटा था प्रबीर मजूमदार, उसका हो सकता था. हमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है. सो हमें केवल अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है. वॉज को हमने इस किया है एंड टर्न्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया है, टर्न्स. सेकेंड इज राजन बाबू एंड टिंकोरी बाबू बोथ वॉकड अप टू द गेट टू सी अस ऑफ, राजन बाबू और टिंकोरी बाबू दोनों हमें सी ऑफ करने के लिए गेट तक आए. आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है. सो यहाँ क्या करना है, हमने राजन बाबू एंड टिंकोरी बाबू के बाद विल लगा देना है, बोथ, एंड वॉकड का हमें वॉक कर देना है बिकॉज हमारा फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म आता है. फोर्थ वन इज अ मिस्ट वॉज राइजिंग फ्रॉम द रंगीत वैली डाउन बिलो, प्रेजेंट में लिखना है. सो यहाँ पर वॉज का क्या किया हमने, इस कर दिया. फिफ्थ वन इज आई टू विल रीड अ लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, सॉरी आई टू हैव रीड अ लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, मैं भी पढ़ता था या पढ़ता हूँ, सॉरी या मैंने भी पढ़े हैं. सो हमें क्या करना है, फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. सो हम यहाँ हैव का विल कर देंगे. नाउ ही वॉज टॉकिंग इन द डिटेक्टिव वन रीड्स अबाउट, नाउ अब वो ऐसे बात कर रहा था जैसे डिटेक्टिव लोग जो हैं वो बात करते हैं. सो वॉज का हमने यहाँ इस कर दिया है. सो दीज एक्सरसाइजेज यू हैव टू फिल इन योर बुक्स. नाउ लेट्स डिस्कस ओवर द क्वेश्चन आंसर्स विच यू हैव टू डू इन योर कॉपीज. So question number 1 is what kind of a boy was Rajan Babu when he was young? राजन बाबू जब यंग थे वो किस तरीके के लड़के थे? राजन बाबू was a good looking but extremely mischievous child when he was young. राजन बाबू एक बहुत गुड लुकिंग लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे थे जब वो छोटे थे, मीन्स यंग थे. Question number 2 is what confession about his wrong doing as a child did Rajan Babu make before Feluda? फेल्यूडा के सामने राजन बाबू ने ऐसा कौन सा कन्फेशन किया था जब वो छोटे थे
उन्होंने कुछ गलत किया था, ऐसा कोई कन्फेशन उन्होंने किया था. सो द आंसर इज राजन बाबू कन्फेस दैट एज अ चाइल्ड, राजन बाबू ने स्वीकार किया था कि जब वो बच्चे थे ही हैड ट्रिप्ड द बेस्ट रनर ऑफ हिज स्कूल टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम विनिंग. उन्होंने क्या किया था, एक बेस्ट रनर था उनके स्कूल का, उसको ट्रिप किया था और उसे जीतने से रोका था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड राजन बाबू टेल फेल्यूडा अबाउट हिज सन. राजन बाबू ने फेल्यूडा को अपने बेटे के बारे में क्या बताया. So the answer is Rajan Babu told that his son Prabir Majumdar had left the home 16 years ago. राजन बाबू ने बताया कि जो उनका बेटा है प्रबीर मजूमदार, उसने 16 साल पहले घर छोड़ दिया था. Since then he is not in contact with his son. और तब से लेकर अब तक वो अपने बेटे के कांटेक्ट में नहीं है. Question number 4, what remark made by Feluda made the speaker comment now he was talking like the detectives one read about. कौन सा ऐसा रिमार्क था जिसके बाद फेल्यूडा का ऐसा कौन सा रिमार्क था जिसके बाद स्पीकर को बोलना पड़ा था कि अब ये बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह बात कर रहा है. सो द आंसर इज व्हेन फेल्यूडा रिमार्क दैट द केस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जब फेल्यूडा ने कहा कि केस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, द स्पीकर मेड दिस कमेंट. सो स्पीकर ने क्या किया, ये कमेंट किया था कि अब ये बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह बात कर रहे हैं. Question number 5, which is also last question, that is what did Tinkori Babu say to Feluda at the end of the passage. पैसेज के लास्ट में टिंकोरी बाबू ने फेल्यूडा से क्या कहा था. सो द आंसर इज एट द एंड ऑफ द पैसेज के अंत में टिंकोरी बाबू सैड दैट ही वॉज ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय फेल्यूडाज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टिंकोरी बाबू ने कहा कि वो फेल्यूडा की ऑब्जर्वेशन पावर से पूरी तरह से प्रभावित हैं. So these were the exercises and question answers which were related to the passage, the 3 photographs. I hope everything is clear to all of you. So fill the book exercises in your books and the question answers in your copies. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.